Good morning, everyone. Today we will start with this sum. Biggie Limited made an issue of 10,000 10% mortgage debentures of rupees 100 each at rupees 96. The whole of the issue was underwritten by Smart Bulls. So Biggie Limited, they want to issue 10,000. The numbers are 10,000, 10% mortgage debentures of rupees 100 each at rupees 96. So they will be issuing. The issue price is a discount. 100 rupees का चीज आप 96 में दोगे. So it is a discount. और ये पूरा जिम्मेदारी to sell the debentures was on Smart Bulls, was on the company called underwriter called Smart Bulls. So 8,500 debentures were applied for and allotted to the public. The underwriters discharged their liability and were paid commission at the rate of 2% on the नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स. मतलब जो कमीशन मिलेगा वो किस पे मिलेगा? इशू प्राइस पे नहीं, इशू वैल्यू नहीं, नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू मीन्स द फेस वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू मीन्स द फेस वैल्यू. एंड वी आर टोल्ड टू प्रिपेयर पास द जर्नल एंट्रीज. We are told to pass the journal entries. So देखो underwriter discharged their liability and were paid commission at the rate of 2% on the nominal value of the debenture. What do you mean by nominal value? Nominal value means face value. So now first let us find out the liability of the underwriter. First, let us find out the liability of the underwriter. Liability of the underwriter. Liability of the underwriter. So how many shares? Oh, no, this is not share, but this is the debentures. So what is the gross liability? What is the gross liability of the underwriter? Underwriter को कितने डिबेंचर सेल करने हैं? Tell me what is the gross liability of the debentures? I mean gross liability of underwriter. कितना डिबेंचर underwriter को सेल करना है? Can anyone tell me? It is 10,000. So gross liability is 10,000. Gross liability means underwriter के ऊपर कितना responsibility दिया गया है? How many number of shares underwriter has to sell? So it is 10,000. Not shares or debentures. Underwriter has to sell. That is because underwriter can be appointed for shares, debentures. So debenture के ऊपर कितना 10,000 डिबेंचर सेल करना है. तो यहाँ पे पब्लिक को कितना सेल कर दिया? हाउ मच वॉज एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक? एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक is how much? So it is given here 8,500 debenture were applied and allotted to public. So public को कितना दिया? कितना एप्लीकेशन मिला? 8,500. तो बचा हुआ जो है, जो शेयर पब्लिक ने नहीं खरीदा वो किसको खरीदना पड़ेगा? दिस इज अंडरराइटर्स लाइबिलिटी. ये नेट लाइबिलिटी है.
ये अंडरराइटर बिकॉज एक ही है तो ये उसका लाइबिलिटी है दैट ही हैज टू परचेज by himself 1500 debentures. So initially the Biggie Limited had given the responsibility for two smart bulls to sell 10,000 debentures. इसमें से उन्होंने कितने को सेल किया? 8,500 डिबेंचर्स उसने पब्लिक को सेल किया. तो अंडर राइटिंग में क्या होता है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडर राइटर एंड द ब्रोकर. Broker only has the responsibility to sell the debentures or shares, but underwriter he guarantees that he will sell that many gross liability ka shares he will sell. That guarantee is given by underwriter. If the underwriter is not able to fulfill his promise, what he will do? He will himself subscribe for the unsold balance. मतलब जो बैलेंस है जो वो सेल नहीं कर पाया अंडरराइटर, वो बैलेंस अंडरराइटर खुद सब्सक्राइब करेगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अंडरराइटर एंड ब्रोकर. ब्रोकर विल नॉट सेल्फ परचेज एनी शेयर्स और डिबेंचर्स. he will only help in the sales, but he will not self purchase. खुद से परचेस नहीं करेगा कुछ भी शेयर्स या डिबेंचर्स. बट underwriter, what will he do? If he is not able to sell the shares or debentures to the public, the balance unsold shares or debentures will be purchased by the underwriter. So अंडरराइटर्स लाइबिलिटी हमें मिल गया 1500 है. so, अभी क्या करेंगे? हमें क्या पूछा गया? ये सब में हमें पूछा गया जर्नल एंट्रीज इन द बुक. जर्नल एंट्रीज शो करने बोला है. सो लेट अस प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी. कंपनी का नाम है बिगी लिमिटेड. सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट, क्रेडिट. Let us adjust the columns. Serial number, particulars, रुपीस. सो पहले वाला एंट्री में हम देखेंगे कि टोटल जो है कितना डिबेंचर सेल हुआ, कितना एप्लीकेशन मिला. हमें पैसा मिला कैश बैंक अकाउंट डेबिट. कितना पब्लिक से, कितना पब्लिक में कितना डिबेंचर पब्लिक से सब्सक्राइब हुआ. एंड व्हाट इज द इशू प्राइस? 96. क्योंकि देखो 100 रुपीज का डिबेंचर है बट हमें मिलेगा सिर्फ 96 बिकॉज द इशू प्राइस इज 96. इशू प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 96. तो हमें 96 ही मिलेगा. दिस विल कम टू 8,16,000. सो 8,500 डिबेंचर्स पे हमें 96 रुपीस मिला. अब स्मार्ट बुल जो है टोटल तो 10,000 शेयर है. तो स्मार्ट बुल्स जो कि अंडरराइटर है वो कितना डिबेंचर्स खुद से खरीदेगा? 1500 इंटू 96. तो इतना पैसा अंडरराइटर को देना पड़ेगा बिकॉज उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 10,000 शेयर्स खरीदने का. बट अंडरराइटर ने सिर्फ was able to sell 8,500 shares to the public, sorry, debentures to the public. Smart Pools was able to sell only 8,500 debenture to the public. So what is the balance? Balance is 1,500, which is underwriter's liability. मतलब underwriter has to purchase those shares. So यहाँ पे कितना आएगा?
see here how much it is coming, 1,44,000। तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों इशू करने से एक लाइबिलिटी क्रिएट होगा, दैट इज 10%। क्या क्रिएट हो रहा है, 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स। कितना है मॉर्गेज डिबेंचर, 10,000 इंटू 100। हम डिबेंचर्स को तो फेस वैल्यू में ही रिकॉर्ड करेंगे, भले मिला है 96, डिबेंचर सेल किया 96 में, बट डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100, सो इट विल बी शोन एट 100 ओनली। तो ये हो जाएगा 10 लाख। तो यहाँ पे हमें 4 रुपीज का डिफरेंस बताएगा, तो वो 4 रुपीज का डिफरेंस क्या है, व्हाट इज दैट 4 रुपीज, दैट इज लॉस, बिकॉज कंपनी ने डिस्काउंट में डिबेंचर इशू किया। डिस्काउंट ऑन इशू, अगर प्रीमियम में करते तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से बताते, प्रीमियम मतलब मोर देन द फेस वैल्यू, बट हियर इट इज लेस देन द फेस वैल्यू। सो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर को 4 रुपीज के डिस्काउंट में सेल किया, सो दिस बिकम्स 40,000। इसको बोलेंगे being debentures issued at a discount to public and public and balance subscribed by underwriter। ऐसे नहीं लिखना है ना, ऐसे नहीं लिखना है नरेशन, तो सिर्फ ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग 10,000 डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट और इशूड एट अ डिस्काउंट, बिकॉज नरेशन आप कैसे लिखते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नरेशन आपने लिखा है, आपने कैसे ऊपर जो ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन किया है इन योर वर्ड्स यू कैन डू इट, there is no problem, in your words you can explain the transaction। तो मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया, द डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट में, किसको इशू किया, एक तो पब्लिक को, और दूसरा जो बच गया, जो पब्लिक को नहीं सेल कर पाए, वो अंडरराइटर ने सब्सक्राइब किया, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट वन, अभी देखो कमीशन भी तो मिलेगा अंडरराइटर को, तो अंडरराइटर को कमीशन मिलेगा, तो दिस कंपनी विल हैव टू पे कमीशन। तो पहले तो कमीशन ड्यू का एंट्री देखते हैं, तो कमीशन इज एन एक्सपेंस, सो अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको पे करेंगे ये कमीशन, टू स्मार्ट बुल्स अकाउंट। कितना कमीशन देना है वो फाइंड आउट करते हैं, 10,000 डिबेंचर्स है और कितना कमीशन देने वाले, 2% और नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर, हमें 2% कमीशन देना है, नॉमिनल वैल्यू मतलब 10,000 डिबेंचर्स अंडरराइटर ने सेल किया,
8,500 पब्लिक को सेल किया और 1,500 पब्लिक को नहीं सेल कर पाया तो खुद से खरीद लिया, तो कमीशन पूरा 10,000 डिबेंचर्स के लिए मिलेगा। लेकिन कौन से प्राइस में बोला है? इशू प्राइस मतलब 96 में मिलता, पर यहाँ पे बोला नॉमिनल वैल्यू, तो नॉमिनल वैल्यू इज 100। इशू प्राइस में देते तो 96 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट दे हैव डिसाइडेड टू गिव द कमीशन एट नॉमिनल वैल्यू, सो 100 रुपीज में देंगे। एंड कमीशन का परसेंटेज कितना है? 2%। कमीशन कितना देने वाले? 2%। सो करो 10,000 इंटू 100 इंटू 2% करो, हाउ मच यू आर गेटिंग? आर यू गेटिंग 20,000? चेक, देखो आपको कमीशन कितने डिबेंचर? 10,000 डिबेंचर पूरा सेल करने के लिए द अंडर राइटर अपॉइंटेड वॉज स्मार्ट बुल्स। पूरा शेयर्स के, पूरा डिबेंचर्स के लिए अंडर राइटर अपॉइंटेड वॉज स्मार्ट बुल्स। तो 8,500 पब्लिक को सेल किया, उस पर भी कमीशन मिलेगा, और जो बचा हुआ जो खुद खरीद लिया उस पर भी कमीशन मिलेगा। So total commission is 20,000 being underwritten commission charged या due underwritten commission पेएबल या ड्यू। अभी तक पे नहीं किया, अंडर राइटिंग कमीशन अभी तक पे नहीं किया, अभी तो जस्ट ड्यू है, पेएबल है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज, देखो अभी जो कमीशन है वो 20,000 है, बट स्मार्ट बुल को 1,44,000 पे भी करना है कंपनी को फॉर 1,500 डिबेंचर्स। देखो स्मार्ट बुल को 1,500 डिबेंचर जो है वो 1,500 डिबेंचर जो है उसका पैसा पे करना है, एंड उसको 20,000 कमीशन का पैसा मिलना है। 1,500 इंटू 96 दैट इज 1,44,000 पे करना है, एंड 20,000 कमीशन उसको मिलना है। तो नेट अमाउंट पेएबल ज्यादा है, मतलब यहाँ पे देखो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्मार्ट बुल से ज्यादा पैसा मिलेगा, 1,44,000 स्मार्ट बुल से मिलेगा, एंड 20,000 स्मार्ट बुल को पे करना है। तो 1,44,000 माइनस 20,000 स्मार्ट बुल हमें कितना देगा? से 1,24,000 देगा उसका कमीशन माइनस करके। सो जब कंपनी को पैसा मिलेगा तो क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। यहाँ पे आपको अगर सेपरेट दो एंट्रीज पास करना है तो आप दो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो, एक तो 1,44,000 मिलने का और दूसरा कमीशन 20,000 पे करने का। आप दो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो। ये जब 1,44,000 मिलेगा तो क्या होगा? डू यू वांट मी टू पास डिफरेंट एंट्रीज? देन आई कैन पास टू डिफरेंट एंट्रीज, या तो मैं एक ही एंट्री पास करूंगी, पैसा मिल रहा है कितना? 1,44,000 मिलना चाहिए था, बट हमें स्मार्ट बुल को 20,000 पे करना था कमीशन और अंडर राइटिंग कमीशन पे करना था। तो अभी हमें वो स्मार्ट बुल विल पे ओनली द बैलेंस अमाउंट, दैट इज 1,24,000, ओनली द बैलेंस अमाउंट ऑफ 1,24,000। तो किसने पे किया? टू, who will pay this? To smart bulls account। तो यहाँ पे अगर दो एंट्री पास करना है तो कैसे करते थे? अगर दो एंट्री पास करना है तो कैसे करते थे? यहाँ पे मैं लिखती थी सेम एंट्री में 1,44,000
और ये ऐसे दिखाने का जरूरत नहीं है, ऐसे। तो ये एक एंट्री हो गया, फिर एक दूसरा एंट्री हो जाएगा, ये जो स्मार्ट बुल क्रेडिट में है उसके वजह से डेबिट में आ जाएगा। स्मार्ट मतलब कमीशन का पैसा मिल रहा है, अंडर राइटिंग कमीशन का, स्मार्ट बुल्स अकाउंट डेबिट टू, कंपनी का पैसा बाहर जा रहे कमीशन पे करने के लिए। देखो हम कंपनी के बुक में एंट्री पास कर रहे 20,000 and here also 20,000, इधर लिखेंगे 20,000। ऐसा दो एंट्री पास कर सकते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही एंट्री में जो हम लोग बैलेंसिंग लिख लेंगे, दैट इज 1,44,000 आना था, जिसमें 20,000 कमीशन का कम करके हमने कितना पैसा लिया, 1 लाख। ऐसे दो एंट्री भी पास कर सकते हैं, या तो एक एंट्री में भी हम खत्म कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे ये वाला ऐसे दिखा के, तो कितना होता है 24 और हमने ये, नहीं तो दो अलग एंट्रीज पास कर सकते हैं, या तो ये एक एंट्री में हमने खत्म कर दिया। सो इसका नरेशन क्या बोलेंगे, बीइंग अकाउंट सेटल्ड या बीइंग बैलेंस ड्यू फ्रॉम स्मार्ट बुल्स received, या बीइंग अकाउंट सेटल्ड विद स्मार्ट बुल्स, जैसे भी तुमको लिखना है नरेशन वैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम दो एंट्री तो एक में लिख सकते थे, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ शेयर्स फ्रॉम स्मार्ट बुल, दूसरा बीइंग कमीशन पेड टू स्मार्ट बुल्स। ऐसा करके दो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते थे, या तो ये एक एंट्री जिसमें हमने दोनों एडजस्ट कर लिया, जितना पैसा मिलने वाला है उससे जितना पे करना है वो माइनस कर दिया, एंड वी हैव कम विद द आंसर, विद द फाइनल वन एंट्री में दोनों का एडजस्ट कर लिया। इसके साथ ये सम खत्म हो गया। So now let us do the next question. Abrol Limited offered to the public 5,000 9% mortgage debentures of rupees 100 each at rupees 105. So Abrol Limited has come up with a public issue of 5,000 9% mortgage debentures of 100 each at 105. तो यहाँ पे इशू प्राइस क्या है, यहाँ पे इशू प्राइस है 105, मतलब प्रीमियम में सेल हो रहा है। इससे पहले सम में हमने देखा 100 रुपीज का डिबेंचर was sold for 96 rupees. In this question 100 rupees का डिबेंचर is sold for 105 rupees. So this is sold at premium, issue at premium. So 80% of the issue was underwritten by Smart Bulls for commission of 2.5%. So क्या हुआ यहाँ पे पूरा इशू अंडरराइटर को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ 80% ऑफ द इशू was underwritten by Smart Bulls for commission of 2.5%. So 5,000 में
कितना ग्रॉस लाइबिलिटी क्या रहेगा, 5,000 रहेगा या 5,000 इंटू 80%? टेल मी हियर। अभी देखो यहाँ पे अब्रोल लिमिटेड ने 5,000 डिबेंचर्स सेल करना है, बट उन्होंने अंडरराइटर अपॉइंट किया है ओनली फॉर द 80% ऑफ द इशू। तो जो ग्रॉस लाइबिलिटी है वो क्या रहेगा, जो ग्रॉस लाइबिलिटी है वो 5,000 रहेगा या 80% ऑफ 5,000? मत, क्योंकि स्मार्ट बुल हु इज द अंडरराइटर, his liability is to sell only 80% of the debentures, because उसको सिर्फ 80% of the issue के लिए अपॉइंट किया है। सो लेट अस फाइंड आउट। यहाँ पे भी हमें बोला है applications were received from public for 4,000 debentures which were allotted। so applications मिला 4,000 के लिए, एप्लीकेशन मिला 4,000 डिबेंचर्स के लिए, और लेट अस सी विच वेर अलॉटेड, शो द जर्नल एंट्रीज। यहाँ पे भी हमें जर्नल एंट्री शो करना है। सबसे पहले देखते हैं लाइबिलिटी, अंडर राइटर्स लाइबिलिटी कितना है, स्टेटमेंट ऑफ अंडर राइटर्स लाइबिलिटी, अंडर राइटर्स लाइबिलिटी कितना है वो देखते हैं। सो उसके लिए हमें चाहिए ग्रॉस लाइबिलिटी। ग्रॉस लाइबिलिटी देखते हैं कितना है। ग्रॉस लाइबिलिटी है 5,000 डिबेंचर्स, लेकिन 5,000 डिबेंचर पूरा नहीं सेल करना स्मार्ट बुल्स को, उनका लाइबिलिटी सिर्फ 80% है। तो ग्रॉस लाइबिलिटी पूरा 5,000 नहीं लिखेंगे, पूरा 5,000 नहीं लिखेंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड आउट 5,000 का 80%। हाउ मच इज 5,000 का 80%? इट इज कमिंग टू 4,000, करेक्ट। 5,000 का 80% इज 4,000। फिर इससे लेस करेंगे, क्या लेस करना है, डिबेंचर, एप्लीकेशन ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम पब्लिक। सो डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर बाय द पब्लिक, ये तो हमें मिला है 4,000, बट ये 4,000 में कंपनी ने भी सेल किया होगा, कुछ कंपनी के स्टैंप भी लगे होंगे, कुछ मार्क्ड एप्लीकेशन मे बी अंडर द स्टैंप ऑफ द कंपनी। तो इधर भी हम कितना परसेंट इशू है, 80%। सो यहाँ पे भी हम 80% में ही चेक करेंगे कि कितना इसने पब्लिक को सेल किया। So how much is coming? How much answer you are getting? 3,200. We are getting 3,200. 3,200. So we will write 3,200. यहाँ पे लिखेंगे 3,200. तो what will be the net liability या अंडरराइटर्स लाइबिलिटी कितना रहेगा? डिफरेंस देखो दोनों का, दैट इज 800। सो अंडरराइटर को खुद से कितना डिबेंचर खरीदना पड़ेगा? अंडरराइटर को खुद से 800 डिबेंचर खरीदना पड़ेगा, और यहाँ पे पब्लिक ने वैसे तो 4,000 डिबेंचर्स खरीद, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, लेकिन अंडरराइटर जो है उसका तो ओनली 80% पे इशू पे उसको कमीशन मिलेगा। तो पूरा 4,000 पे उसको नहीं निकालना है, 4,000 का 80% जो अमाउंट आता है वो हम लिखेंगे कि उतना अंडरराइटर उतना सेल करेगा।
नथिंग इज गिवन, क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशन नहीं दिया यहाँ पे. नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल स्टार्ट विद द journal entries in the books of Abrol Limited. We want 4 columns, serial number, particulars and amount. 2 columns for amount, serial number, particulars, rupees. सो सबसे पहला एंट्री, कितना एप्लीकेशन मिला तो उतना कैश आया. जितना एप्लीकेशन मिला उतना कैश बैंक आया. तो एप्लीकेशन मिला कंपनी को 4000 का, और एक डिबेंचर 105 रुपीस में इशू हो रहा है. 105 रुपीस में इशू हो रहा है. तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 105. सो टोटल एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम द पब्लिक वॉज 4000 डिबेंचर्स. तो 4000 के लिए पैसा आएगा. तो कितना होता है ये 4000 इंटू 105, दिस 4,20,000. 4,20,000 कैश बैंक अकाउंट डेबिट 4,20,000. एंड इसके बाद अंडरराइटर ने भी कुछ शेयर्स, कुछ डिबेंचर खुद से खरीदा है. सो अंडरराइटर का नाम क्या है, स्मार्ट बुल्स. व्हाट इज द नेम ऑफ द अंडरराइटर, स्मार्ट बुल्स अकाउंट डेबिट. कितना डिबेंचर अंडरराइटर ने खरीदा है, 105. सो अंडरराइटर्स लाइबिलिटी इज 800 डिबेंचर्स. अंडरराइटर्स लाइबिलिटी इज 800 डिबेंचर्स. सो 800 इंटू 105 किया हमने. हाउ मच इट इज कमिंग, मल्टीप्लाई करो 84,000. सो यहाँ पे टोटल कितने डिबेंचर्स रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर इज 2. लाइबिलिटी क्रिएट हुआ 9% मॉर्गेज, 9% मॉर्गेज डिबेंचर्स. कितना 4000 प्लस 800 इस 4800. भले 105 में सेल किया, बट डिबेंचर डिस्काउंट में सेल करो या प्रीमियम में, हमें रिकॉर्ड तो फेस वैल्यू में ही करना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स 4,80,000. दिस बिकम्स 4,80,000. फिर अभी 5 रुपए का प्रीमियम है, 5 रुपीज का प्रीमियम है. सो यहाँ पे वी विल राइट 2. प्रीमियम का पैसा किधर सेव करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम. किधर सेव करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में. किधर सेव करते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम में. कितना 4,800 डिवेंचर्स सेल किया, सब 105 रुपीस में. 4,000 पब्लिक को, 800 अंडर राइटर को. कितने का प्रीमियम आया, 5 रुपीस का. सो हाउ मच इट इज कमिंग टू 24,000. So being debentures
issued at premium to being debentures issued at premium to public and balance subscribed by underwriter. तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है, तो हम लिख सकते हैं being 4,800 debentures issued at a premium, being debentures issued at premium, सिर्फ इतना लिखेंगे तो भी चलेगा, being debentures issued at premium. अभी कमीशन के बारे में देखना पड़ेगा, अभी कमीशन के बारे में देखना है। तो 4,000 अंडरराइटर ने कितना ग्रॉस लाइबिलिटी था 4,000, जिसमें से 3,200, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आर 5,000, बट अंडरराइटर को कितना, अंडरराइटर को सिर्फ 4,000 बिकॉज ही वॉज अपॉइंटेड फॉर 80% ऑफ द इशू, तो 4,000 सेल किया, 3,200 पब्लिक को और 800 खुद से खरीद लिया, तो 4,000 के ऊपर कमीशन मिलेगा। सो यहाँ पे आएगा क्या है ये, अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू, किसको पे करने वाले, कमीशन स्मार्ट बुल्स अकाउंट। तो कितना शेयर्स है, शेयर्स डिबेंचर्स है, मॉर्गेज डिबेंचर्स 4,000 कितने में इशू किया, यहाँ पे क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे कमीशन किस क्या बोला है, 80% ऑफ द इशू वाज अंडर रिटन बाय स्मार्ट बुल्स फॉर कमीशन ऑफ 2.5%। यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू, इशू वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू है, इशू वैल्यू है, कुछ भी नहीं दिया, तो द मैक्सिमम किस में कमीशन मिलेगा, 105 में, इशू वैल्यू में। तो हम लोग क्या करते, इशू वैल्यू में यहाँ पे हमने कमीशन कितना परसेंट कमीशन बोला है, 2.5%, कमीशन अमाउंट इज 2.5%। तो फाइंड आउट करो कितना आ रहा है, 4,000 इंटू 105 इंटू 2.5%, हाउ मच इज द कमीशन कमिंग टू, 10,500, द कमीशन इज कमिंग टू 10,500। So being commission charged या payable या due, being underwriting commission charged by smart bulls है, तो यहाँ पे पेबल लिखेंगे क्योंकि कंपनी को तो पे करना है। अभी कितना स्मार्ट बुल को कहाँ से पैसा, स्मार्ट बुल जो है हमें 884,000 पे करना है और कंपनी को उसको 10,500 पे करना है। स्मार्ट बुल जो अंडरराइटर है उसको 84,000 पे करना है टू द कंपनी एंड कंपनी हैज टू पे देम 10,500, तो नेट अमाउंट ले लेते हैं। सो पैसा
मिलेगा, बिकॉज डिबेंचर का पैसा इससे मिलने वाला है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट कितना 84,000 मिलना चाहिए था, बट 10,500 का कमीशन इनको पे करना है, तो नेट अमाउंट इज हाउ मच 73,500 टू क्या लिखेंगे, ये स्मार्ट पुल डेबिट में था तो अभी क्रेडिट में लिखेंगे। ऐसे तुमको एक साथ एंट्री पास नहीं करना है, तो दो अलग अलग एंट्री पास कर सकते हो। एक तो शेयर का डिबेंचर का पैसा मिलने का एंट्री, ये 800 इंटू 105 मिलने का एंट्री, और ये अंडर राइटिंग कमीशन पे जो कंपनी जो पे करेगी उसका एंट्री। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू स्मार्ट बुल्स ये 84,000, this is the entry for receipt of the debenture amount, and smart bull account debit to cash bank underwriting commission paid, उसका दूसरा एंट्री। ऐसे दो एंट्री भी दिखा सकते हैं, बट आई हैव शोन अ कंबाइन एंट्री हियर, तो इसको बोलेंगे बीइंग बैलेंस सेटल्ड with being balanced settled with smart bulls, या फिर बोल सकते थे being balanced due from smart bulls received। with this sum is also done। this is the next sum we will do now। authorized capital of Jalaram Limited was 12,50,000 equity shares of rupees 10 each. So this is the authorized capital. Authorized is the maximum limit, maximum number of shares which a company can issue in its lifetime. So Jalaram Limited can issue maximum of 12,50,000 equity shares of rupees 10 each. 12,50,000 equity shares of rupees 10 each. Company issued 80% shares at a premium of rupees 2 per share, which was entirely underwritten as follows. So company issued 80% shares. They can issue maximum of 12,50,000। सो जरा देखो 80% 12,50,000 का कितना होता है, 12,50,000 का 80% इज 10 lakhs। सो कंपनी ने कितना शेयर्स इशू किया पब्लिक को, 10 lakhs। सो 10 lakhs इशू किया एट 2 rupees प्रीमियम, मीन्स शेयर 10 rupees का है, 2 rupees का प्रीमियम मीन्स द शेयर्स विल बी इशूड एट 12 rupees। द शेयर्स विल बी इशूड एट 12 rupees। ये जो शेयर्स है 10 lakh shares which the company is selling to the public, which was entirely underwritten as follows। तो ये जो है इसको 4 of the underwriters को underwrite किया, this has been underwritten to as follows। कोटक जो है वो 40% of the शेयर्स अंडरराइट करेगा, उसका ग्रॉस लाइबिलिटी रहेगा 10 लाख इंटू 40%। एंड कोटेजा जो है ही विल अंडरराइट 10 लाख का 30%। ठक्कर जो है ही विल अंडरराइट 10% ऑफ 10 लाख। एंड गनथरा जो है ही विल अंडरराइट 10% ऑफ 10 लाख, मतलब 40 + 30 70, 40 + 30, sorry यहाँ पे ना I have, there is a mistake here, this Thakkar is 20%। 1 minute, I will do the
rectification here, ये जो है 10% नहीं है, it is 20%. So it comes to 100. So this comes to 100. 40 plus 40, 40 plus 30 plus, 1 minute, I'll remove this. So 40% कोटक विल हैव द लाइबिलिटी कि उसको 10 लाख का 40% सेल करना है, कोतेजा को 30%, ठक्कर को 20%, गणित्रा को 10%. सो ये सबको ऐड करेंगे, 40, 30, 20, 10, इट विल गिव अस 100%, entirely underwritten by 4 underwriters. Company received applications for 9 lakh equity shares. सो कंपनी को एप्लीकेशन मिला 9 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए, इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशंस एज बिलो. तो ये 9 लाख में मार्क्ड एप्लीकेशंस कितना है, 2,85,000 कोटक का, कोटेचा का 3 लाख, टक्कर का 1,10,000, गणत्र का 1,05,000. सो इट इंक्लूडेड मार्क्ड एप्लीकेशन. तो ज़रा ये सबको ऐड करो, 2,85,000 प्लस 3 लाख, 2,85,000 प्लस 3 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 1,05,000, ये सबको ऐड करने पे 9 लाख में 8 लाख आर मार्क्ड एप्लीकेशंस. तो बच जाता है 1 लाख. वो 1 लाख जो है इट विल बी अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. मार्क्ड एप्लीकेशंस मतलब क्या, तो जो टोटल एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव हुआ 9 लाख का, जिसमें से 2,85,000 शेयर्स पे कोटक का स्टैंप था, 3 लाख पे कोटेचा का स्टैंप था, 1,10,000 शेयर्स पे ठक्कर का स्टैंप था, 1,05,000 शेयर्स पे गणत्र का स्टैंप था. तो बाकी जो बचा हुआ शेयर्स था उस पे किसी का भी स्टैंप नहीं था, तो उसको हम अनमार्क्ड शेयर्स बोलेंगे, उसको हम अनमार्क्ड शेयर्स बोलेंगे, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस बोलेंगे. तो उसको हम ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो, दैट इज 4:3:2:1, 40%, 30%, 20%, 10%, इसमें डिवाइड कर लेंगे 1 लाख को, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को. तो अंडरराइटर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन फेस वैल्यू. तो अंडरराइटर्स को 5% का कमीशन मिलेगा ऑन face value. From the above information, find out the liability of underwriters and give journal entries in the books of Jalaram Limited. So सबसे पहले हमें underwriters का liability find out करना है. Statement showing liability of underwriters, liability of अंडरराइटर्स. तो यहाँ पे वी वांट पर्टिकुलर बेसिस 1, 2, 3, 4 टोटल कॉलम भी बना दे. सो यहाँ पे थोड़ा ये पर्टिकुलर्स को आई वांट टू मेक लिटिल बिग, सो आई एम एक्सटेंडिंग इट. बेसिस इतना बिग नहीं चाहिए. तो यहाँ पे हमारा हो गया पर्टिकुलर्स, basis, what is the name, कोटक, कोटेचा, ठक्कर, फिर we have गणत्र. So then we have total. So सबसे पहले होता है ग्रॉस लाइबिलिटी. सबसे पहला होता है ग्रॉस लाइबिलिटी. ग्रॉस लाइबिलिटी के लिए
हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स पता है, इट इज 10 lakhs। कैसे? टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल था 12,50,000 इक्विटी शेयर, बट कंपनी ने 80% ऑफ द शेयर्स इशू किया, 80% ऑफ द शेयर्स इशू किया। तो 12,50,000 का 80% इज 10 लाख। अब इसको कौन से रेशो में, 40, 30, 20, 10, सब 10 के टेबल में जाता है। 40 भी 4 जार, 30 3 जार, 20 10 2 जार, एंड 10 1 जार में आता है। तो 40, 30, 20 एंड 10 ये रेशो में आ जाता है। 40 मतलब 10 4 जार, 30 मतलब 10 3 जार, 20 मतलब 10 2 जार, 10 मतलब 10 1 जार। तो ये रेशो हो जाता है। तो 10 लाख को 40% निकालो या 4/10 करो। 4/10 कैसे आया? 4 + 3 + 2 + 1 इज 10। तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। So this 4/10 becomes 4 lakhs. 3/10 becomes 3 lakhs. 2/10 becomes 2 lakhs. 1/10 becomes 1 lakhs. तो हमें ये ग्रॉस लाइबिलिटी मिल गया। We have got the gross liability. Now what we will do, ग्रॉस लाइबिलिटी मिल गया तो अभी हम इसको लेस करेंगे, ग्रॉस लाइबिलिटी को लेस करेंगे किससे? मार्क्ड एप्लीकेशंस, जो कि गिवन है। मार्क्ड एप्लीकेशंस, मार्क्ड एप्लीकेशन से। तो मार्क्ड एप्लीकेशन तो गिवन है, कितना है? इट इज गिवन। सो मार्क्ड एप्लीकेशन इज गिवन। इंडिविजुअल अंडरराइटर कितना है? 2,85,000। फिर कोटेचा का कितना है? 3 लाख। फिर इसके बाद हाउ मच इज फॉर ठक्कर? 1,10,000। हाउ मच इज फॉर गणत्र? 1,05,000। यहाँ पे ये होने के बाद कितना हो जाएगा टोटल? हमने ऑलरेडी ऐड किया है इसको। 8 lakhs होता है। 2,85,000 प्लस 3 lakh प्लस 1,10,000 प्लस 1,05,000 इज 8 lakhs, इज 8 lakhs। So, अभी हमें जो मिलेगा, इट विल बी द बैलेंस। इधर कितना आ जाएगा? 1,15,000। इधर कितना आ जाएगा? 0। इधर कितना आ जाएगा? 90,000। इधर कितना आ जाएगा? -5,000। और इधर आ जाएगा कितना? 2 lakhs ना। इधर आ जाएगा 2 lakhs। फिर अभी क्या करेंगे? अभी ये बैलेंस में से लेस करेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशंस। अनमार्क्ड एप्लीकेशन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो में डिवाइड होना चाहिए। तो ग्रॉस लाइबिलिटी है 4:3:2:1। सो 1 लाख है हमारे पास अनमार्क्ड एप्लीकेशन। कैसे मालूम 1 लाख है? तो यहाँ पे हम वर्किंग में लिख सकते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, unmarked applications is equal to total application minus marked application। टोटल एप्लीकेशन आया 9 लाख शेयर्स का।
इसमें से माइनस किया marked application which is 8 lakh share, so is equal to unmarked application is equal to 1 lakh shares. So ये 1 लाख को ये रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो में करेंगे तो 40,000, 30,000, 20,000, इधर कितना हो जाएगा 10,000. सो ये हमें मिल जाएगा -1 लाख. सो भी पर ले लेते हैं, एक लाइन में रहना चाहिए. तो ये हो गया. नाउ हमें फिर बैलेंस आ जाएगा, ये माइनस करो कितना हो जाएगा 1,15,000 माइनस 40, 75,000. यहाँ पे आ जाएगा -30,000, यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 20, 70,000 और यहाँ पे आ जाएगा -15,000 और यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख. अभी क्या करना है, क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा, जिसका भी ब्रैकेट में है उसका क्रेडिट एडजस्ट करना पड़ेगा. क्रेडिट एडजस्टेड ऑफ कौन, दो लोग, तेजा एंड व्हाट इज अनदर वन, गणत्रा. इन दोनों का क्रेडिट एडजस्ट करना है. तो बाकी दो लोगों का रेशो क्या है, कोटक और टक्कर दोनों बच गए, उनका रेशो है 4:2. 3 वॉज कोटेजा एंड 1 वॉज गणत्रा. उनको छोड़ के क्या रेशो बचता है 4:2. तो 45,000 कैसे मिला मुझे, 45,000 कैसे मिला, एक का 30,000 है और दूसरे का 15,000 है. दोनों को ऐड करेंगे तो 45,000 मिलता है. तो 45,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 करो. 6 कहाँ से मिला, 4 + 2 रेशो है ना 4:2. तो 4 + 2 is 6. सो 4/6, 2/6 कितना आ रहा है 4/6. हाउ मच, 4/6 इज 30,000 एंड यहाँ पे 2/6 करो. 45,000 इंटू 2/6, 45,000 इंटू 2/6, सॉरी रॉन्ग प्लेस में लिखा. 45,000 इंटू 2/6 इज 15,000. 45,000 करो, आंसर यू आर गेटिंग द सेम आंसर. प्लीज check this answer. 45,000 into 4/6 is 30,000. 45,000 into 2/6 is 15,000. Correct? So यहाँ पे I will write 30,000 और यहाँ पे I will write 15,000. So इधर हो जाएगा कुछ भी नहीं, 0. तो लास्ट में जो मिल जाएगा दैट विल बी द नेट लाइबिलिटी. नेट लाइबिलिटी कितना है 45,000. इधर कुछ नहीं है, नील है. इधर 55,000 है, इधर नील है और इधर इट इज 1 लाख. So we have got the net liability. But now the question asked to us is
जर्नल एंट्रीज मतलब ये लाइबिलिटी तो इंडिविजुअल अंडरराइटर का दिखाना था, इसके साथ एक और एडिशनल चीज पूछा है, दैट इज जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जलाराम लिमिटेड। सो हमें यहाँ में क्या एक और चीज करना है, दैट इज जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, journal entries in the books of Jalaram Limited. So let us prepare the column for journal entry. So here serial number चाहिए because date कुछ दिया नहीं है, serial number and then amount columns. Let us adjust the amount columns. So serial number, particulars, rupees, rupees. So सबसे पहला एंट्री एप्लीकेशंस हमें मिलता है, उसका है सबसे पहले। तो एप्लीकेशन हमें कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट, कितना शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, 9 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला, करेक्ट ना, 9 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मिला। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 9 lakh shares, company received applications for 9 lakh shares. So here what we will do, so यहाँ पे 9 लाख शेयर्स है और एक शेयर कितने में सेल किया है, 10 रुपीज का शेयर है बट 12 रुपीज में सेल किया है, 2 रुपीज का प्रीमियम, 10 रुपीज का शेयर एंड 2 रुपीज का प्रीमियम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 रुपीज। सो हाउ मच इज 9 लाख इंटू 12, 9 lakh into 12 is 1 crore 8 lakhs बराबर 9 लाख शेयर्स हमें एप्लीकेशन आया। फिर बाद में 45,000 शेयर, बाकी लोगों का नेट लाइबिलिटी तो नील है, सिर्फ 2 लोगों का लाइबिलिटी है, किसका, कोटक और ठक्कर का। कोटक को 45,000 शेयर्स खरीदना है और ठक्कर को 55, बाकी लोगों ने तो पब्लिक को सेल करके अपना लाइबिलिटी सेटल कर दिया, जितना उनका ग्रॉस लाइबिलिटी था उतना उन लोग ने सेल कर दिया मार्क्ड और अनमार्क्ड में, पब्लिक को ही सेल कर दिया। बस कोटक एंड टक्कर जो है वो लोग उतना सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर्स पब्लिक में सेल नहीं कर पाए, तो उनको खुद को इतना नंबर ऑफ शेयर्स खरीदना पड़ रहा है। कोटक को 45,000 खुद से खरीदना पड़ेगा, टक्कर को 55,000 खुद से खरीदना पड़ेगा, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू सेल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। जितना उनका ग्रॉस लाइबिलिटी था उतना वो लोग सेल नहीं कर पाए पब्लिक को। सो एज पर द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट रिमेनिंग नंबर ऑफ शेयर्स दे देमसेल्फ हैव टू परचेज। सो एज पर द अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इनका ग्रॉस लाइबिलिटी 4 लाख था, लेकिन वो लोग उतना शेयर्स नहीं कोटक सेल कर पाया, तो 45,000 शेयर उसने खुद खरीदा एंड ठक्कर को 2 लाख शेयर सेल करना था, वो नहीं कर पाया, तो 55,000 उसको खुद को खरीदना पड़ा एज पर द एग्रीमेंट। सो यहाँ पे देखो हमें जिसने खरीदा उसका नाम लिखना पड़ेगा, तो कोटक का नाम लिखते हैं, कोटक अकाउंट डेबिट, कितना शेयर कोटक खरीद रहा है, 45,000 इंटू 12, 45,000 इंटू 12। फिर ठक्कर को कितना खरीदना है, ठक्कर अकाउंट डेबिट, उसको 55,000 शेयर्स खरीदना है, so 55,000 इंटू 12,
सो नाउ मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, डेबिट में लिखना है, कितना आ रहा है 45,000 इंटू 12 मीन्स 5,40,000 and 55,000 into 12 means 6,60,000. Just check whether these answers are correct. तो अभी यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम, 2 रुपए का प्रीमियम दे रहे, तो यहाँ पे एक और चीज आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे कितना नंबर ऑफ शेयर, 9 प्लस 1 लाख, 45 प्लस 55 इज 1 लाख ना, तो टोटल यहाँ पे 10 लाख है, 10 लाख है। एक शेयर 10 रुपीज का है और दूसरा 10 लाख शेयर्स पे 2 रुपए का प्रीमियम है। सो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग हियर 10 lakh into 10 which is equal to 1 crore, correct? 10 lakh into 10 is 1 crore, 10 lakh into 10 is 1 crore and 10 lakh into 2 is 20 lakhs. तो मतलब 1 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल, 20 lakhs का प्रीमियम। सो इसको बोलेंगे बीइंग शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, बोल सकते हैं ना, बीइंग इक्विटी शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। सिर्फ इतने में स्टॉप कर सकते हैं, या तो ये किसको, टू द पब्लिक and balance to underwriters, and balance to the underwriters। सिर्फ इशू शेयर्स इशूड एट प्रीमियम इतना भी लिख के स्टॉप हो सकते थे, बट हमने बताया किस किस को दिया है, पब्लिक को शेयर सेल इशू किया है और इशू किया है टू द बैलेंस, जो बच गया, जो पब्लिक ने अप्लाई नहीं किया, वो बैलेंस अंडरराइटर्स ने खरीद लिया, सब्सक्राइब किया। So shares issued to the public and balance to the underwriters, which they were not able to sell to the public, was purchased by the underwriters। यहाँ तक हो गया। अभी कमीशन का देखना पड़ेगा, अभी क्या देखना पड़ेगा, अभी कमीशन देखना पड़ेगा। तो कमीशन है अंडर राइटिंग कमीशन, ये तो नुकसान है ना कंपनी के लिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कौन कौन अंडर राइटर्स है, जिसको पहले वाले सम में एक ही अंडर राइटर था, स्मार्ट बुल्स, लेकिन यहाँ पे देर आर 3 अंडर राइटर्स, तो सबका नाम लिख देते, टू कोटक, टू कोतेजा, कोटेचा, टू ठक्कर, टू ठक्कर अकाउंट, and last one to Ganatra, Ganatra account। so यहाँ पे पहले तो हमें ये चार्ज दिखाना है कि कितना फेस वैल्यू के ऊपर है ना, कमीशन इज 5% of the face value, commission charged is 5% of the face value। तो what is the face value, फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू का 5% बोला है, फेस वैल्यू कितना है, तो जितना शेयर्स है फेस वैल्यू है उसका हमें 5% बोला है। सो फाइंड आउट कितना आ रहा है, सो 1 करोड़ फेस वैल्यू बोला, इशू वैल्यू का नहीं। सो इसका 5% देखो कितना होता है,
See how much you are getting. How much you are getting? तो फेस वैल्यू इज दिस, करेक्ट? बोला है क्वेश्चन में फेस वैल्यू का 5%। कमीशन क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन इज फेस वैल्यू का 5%। तो बोला गया अंडर राइटर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट 5% कमीशन ऑन द फेस वैल्यू, ऑन द फेस वैल्यू। तो उनको फेस वैल्यू पे 5% कमीशन मिलेगा। तो फेस वैल्यू मतलब इट इज कमिंग टू 5 लाख, इज कमिंग टू 5 लाख। अभी इनका कितना रेशो क्या है? ये 5 लाख को डिवाइड कैसे करेंगे? 40%, या तुमको 4/10 लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। 30 ना, 4 के बाद 30%। एक बार चेक भी करेंगे ये लिखने के बाद। फिर 20% और लास्ट वाले का है 10%। ये कैसे मिला? लेट अस सी हियर। यहाँ पे दिया है ना इनका ग्रॉस लाइबिलिटी क्या है। कमीशन भी तो वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। सो हाउ मच इट इज कमिंग? फाइंड आउट। 5 लाख का 40%, 5 लाख का 30%, 5 लाख का 20%, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 10% बीइंग कमीशन पेएबल। अभी तक पे नहीं किया है। बीइंग कमीशन पेएबल टू अंडरराइटर्स, बीइंग कमीशन पेएबल टू अंडरराइटर्स। इसके बाद अब बैलेंस जो भी है वो दो लोगों को, देखो यहाँ पे देखो, कोटक और टक्कर को 5,40,000 और 6,60,000 पे करना है, लेकिन कोटक को 2 लाख कंपनी को भी कमीशन का देना है एंड टक्कर को 1 लाख कमीशन का देना है। तो बैलेंस अमाउंट हम लोग रिसीव करेंगे ना। तो यहाँ पे कोटक और टक्कर डेबिट में है, इनको अभी इनसे पैसा मिलेगा। इन्होंने जो बैलेंस शेयर्स खरीदा है, क्योंकि ये लोग पब्लिक को सफिशिएंट नंबर ऑफ शेयर सेल नहीं कर पाए, वो लोग नहीं कर पाए। 45,000 कोटक ने खुद से खरीदा और टक्कर ने 55,000 खुद से खरीदा। तो इसके वजह से जो बैलेंस है वो अभी उनको कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे किसका नाम है? कोटक, कोटक अकाउंट, कोटक अकाउंट। एंड यहाँ पे कोटक अकाउंट है एंड देयर इज ठक्कर अकाउंट, एंड देयर इज ठक्कर अकाउंट, ठक्कर अकाउंट। सो कोटक और टक्कर अकाउंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? कितना पैसा कोटक से 5,40,000 कंपनी को मिलना था, बिकॉज 45,000 शेयर 12 रुपीज का कोटक ने खरीदा, लेकिन कोटक को 2 लाख का कमीशन पे करना था कंपनी को। एंड टक्कर जो है उसको कंपनी को पे करना था, उसको कंपनी को पे करना था 6,60,000, बट कंपनी को उसको 1 लाख रुपीस पे करना था। टक्कर को रिसीव करना था इतना 6 लाख, एंड यहाँ पे माइनस 1 लाख जो है हमने कमीशन का माइनस किया। तो कितना होता है जरा देखो, हाउ मच इज इट कमिंग? 5,40,000 माइनस 2 लाख is coming to 3,40,000, and 6,60,000 minus 1 lakh is coming to 5,60,000। दोनों को ऐड करो, हाउ मच इज इट? 9 लाख। बीइंग बैलेंस सेटल्ड, बीइंग बैलेंस सेटल्ड, बैलेंस सेटल्ड। इसके बाद और भी दो लोग हैं
देखो उनको तो कुछ भी नील पैसा, उनका कोई लाइबिलिटी नहीं है कंपनी के ऊपर। जो कोटेजा और गनत्रा है उनका कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, उनका नेट लाइबिलिटी नील है। उनको कोई भी पैसा पे नहीं करना है कंपनी को, तो उनका कमीशन तो वो लोग कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोटक इस कोटेजा इस इन द क्रेडिट, तो वो डेबिट में हो जाएगा। कोटेजा अकाउंट डेबिट, और गनत्रा है, गनत्रा अकाउंट डेबिट। इनका कमीशन का पैसा कंपनी इनको पे करेगा, तो मनी विल गो आउट कैश बैंक अकाउंट। तो कितना पे करना है, कोटेजा का देखो कितना है 1,50,000 है, और ठक्कर का देखो, ठक्कर का तो दे दिया, गनत्रा का इस 50,000। सो ये दोनों को ऐड किया तो कंपनी का कितना पैसा अंडर राइटिंग कमीशन में चला गया बाहर, 2 लाख। तो ये 2 लाख क्यों गया, बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन पेड, बीइंग अकाउंट सेटल भी लिख सकते थे, बीइंग कमीशन पेड टू द अंडर राइटर्स। बाकी लोगों को तो पैसा पे भी करना था कंपनी को, तो माइनस करके वो लोग ने दिया, सेटल किया, एडजस्ट करके दिया। यहाँ पे कोटेजा और गनत्रा का कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, नेट लाइबिलिटी नील है। तो उनका जो भी पैसा था वो उनको एज कमीशन मिल गया। इसके साथ ऑल द जर्नल एंट्रीज आर डन, दिस सम इज ऑल्सो डन। Thank you very much everyone. So I'll end the lecture here.